Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Azad Jammu Kashmir Textbook Board. This is Hamna Binte Shehzad. Dear students, आज के वीडियो लेसन में हम देखेंगे English for the grade 7 का unit number 9 and the title of unit is The Wise Old Woman. आज हम लेसन नंबर 2 में देखेंगे रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी कि एक चैप्टर की रीडिंग और साथ ही उसकी अंडरस्टैंडिंग. सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग. जी, जैसे कि अब आपको स्क्रीन पे रीडिंग नजर आ रही है तो हम इसको अब रीड करते हैं. Many years ago there lived an arrogant and cruel young lord who ruled over a small village in Japan. I have no use for old people in my village, he said arrogantly. I therefore decree that anyone over 71 must be banished from the village. What a dreadful decree! What a cruel and unreasonable lord we have! The people of the village murmured, but the Lord fearlessly punished anyone who disobeyed him. And so all villagers were carried into the mountains, never to return. A farmer and his mother lived happily together. As the years went by, the mother grew older and reached the age of 71. One day, the mother herself spoke of the Lord's dreadful order. She said, "The time has come for you to take me to the mountains. We must hurry before the Lord send his soldiers for you." The next morning, he lifted his mother to his shoulders and set off towards the mountain. The young farmer finally spoke. "Mother, I cannot leave you in the mountains to die all alone. We are going home, and no matter what happens, I will never desert you." So they waited until the sun had set, and at night time, the farmer carried his mother quietly to their little house. The farmer dug a deep hole in the floor and kept his mother safely hidden there. Then, one day, there was a terrible disturbance among the villagers because Lord Higa of the town threatened to take over their village and make it his own. The Lord announced, "Bring me a box containing 1,000 ropes of ash and I will spare your village." The cruel Lord quickly together all the wise men of his village. He said, "Surely you can tell me how to meet Lord Higa's demand so our village can be spared." But the wise men shook their head. "It is impossible to make even one rope of ash. How can we make 1,000? The Lord cried angrily. "What good is your wisdom if you can't help me now?" And he posted a notice offering a great reward of gold to any villager who could help him save their village. The farmer told her mother the impossible demand by Lord Higa, but his mother remained calm and said, "That is not such an impossible task. Just soak ordinary rope in salt water and dry it well. When it is burnt, it will hold its shape and there is your rope of ash." The farmer was amazed. He rushed to tell the young lord what he must do. When the lord heard the farmer's solution, and he rewarded him with the many pieces of gold, and the village was spared. Soon afterwards, Lord Higa sent another threat. He sent a log with a small hole that was curved and bent 7 times through its length, and he demanded that a single silk thread be threaded through the hole. कई साल पहले जापान के एक छोटे से गांव पर एक मुतकब्बिर और जालिम नौजवान आका रहता था. "मेरे गांव में बूढ़े लोगों का कोई फायदा नहीं है," उसने तकब्बुर से कहा. "इसलिए मैं हुक्म देता हूं कि 71 साल से ज़्यादा उम्र के किसी को भी गांव से निकाल दिया जाए." कितना खौफनाक फरमान है! कैसा जालिम और बेअक्ल आका है हमारा! गांव के लोगों ने बुड़बुड़ाया, लेकिन आका ने बेखौफी से हर उस शख्स को सजा दी जो इसकी नाफरमानी करता था, और इतने बूढ़े देहातियों को पहाड़ों में ले जाया जाता था जो कभी वापस नहीं आते थे. एक किसान और उसकी माँ खुशी खुशी एक साथ रहते थे. जैसे जैसे साल गुजरते गए, माँ बूढ़ी होती गई और 71 साल की हो गई. एक दिन माँ ने आका के खौफनाक हुक्म की बात की. उसने कहा,
अब वक्त आ गया है कि तुम मुझे पहाड़ों पर ले जाओ, हमें जल्दी करनी चाहिए इससे पहले कि आका तुम्हारे लिए अपने सिपाही भेजे। अगली सुबह उसने अपनी माँ को कंधों पर उठा लिया और पहाड़ों की तरफ रवाना हो गया। नौजवान किसान ने आखिर में कहा, माँ, मैं तुम्हें पहाड़ों पर अकेला मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। हम घर जा रहे हैं और चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। चुनाचा वो सूरज गुरूब होने तक इंतजार करते रहे और रात के वक्त किसान खामोशी से अपनी माँ को अपने छोटे से घर ले आया। किसान ने फर्श में गहरा घड़ा खोदा और अपनी माँ को वहीं बहिफाजत छुपा दिया। फिर एक दिन गांव वालों में खौफनाक इंतशार पैदा हुआ क्योंकि कस्बे के लॉर्ड हेगा ने उनके गांव पर कब्जा करने और उसे अपना बनाने की धमकी दी। आका ने ऐलान किया, मेरे पास एक राख की 1000 रस्सियों पर मुश्तमिल संदूक है, वो लेकर आओ, मैं तुम्हारे गांव को छोड़ दूंगा। जालिम आका ने जल्दी से अपने गांव के तमाम अक्लमंदों को इकट्ठा किया और उसने कहा, यकीनन आप मुझे बता सकते हैं कि लॉर्ड हेगा के मुतालबात कैसे पूरे किए जाएं ताकि हमारे गांव को बचाया जा सके। लेकिन अक्लमंद सरदारों ने सर हिला दिया। राख की एक रस्सी भी बनाना नामुमकिन है, हम 1000 कैसे बना सकते हैं? आका ने गुस्से से पुकारा, अगर अब तुम मेरी मदद नहीं कर सकते तो तुम्हारी हिकमत किस काम की? और उसने एक नोटिस बनाया जिसमें किसी भी देहाती को सोने के अजीम इनाम की पेशकश की जो उसके गांव को बचाने में उसकी मदद कर सकता था। किसान ने अपनी माँ को लॉर्ड हेगा की तरफ से किया गया नामुमकिन मुतालबा बताया, लेकिन इसकी माँ खामोश रही और कहने लगी, ये इतना नामुमकिन काम नहीं है, बस आम सी रस्सी को खारे पानी में भिगो दें और उसे अच्छी तरह खुश्क करें। जब उसे जलाया जाएगा तो ये बरकरार रहेगी अपनी शक्ल में और आपकी राख की रस्सी तैयार है। किसान हैरान रह गया। वो नौजवान आका को बताने के लिए भागा कि उसे क्या करना है। जब आका ने किसान की बात सुन ली तो उसने उसे बहुत सारे सोने के टुकड़ों से नवाजा और इस तरह गांव बच गया। इसके फौरन बाद लॉर्ड हेगा ने एक और धमकी भेजी। इसने एक छोटे सुराख के साथ एक लॉग भेजा जो मुड़ा हुआ था और उसकी लंबाई में 7 बार झुका हुआ था। लॉर्ड हेगा ने मुतालबा किया कि उस सुराख में रेशम का एक धागा बांधा जाए। डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की रीडिंग। अब आगे से कहानी को हम अगले वीडियो लेसन में कंटिन्यू करेंगे और जब हमारी कहानी कंप्लीट हो जाएगी तो हम देखेंगे इसकी ट्रांसलेशन। आई होप आपको वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।